guys, welcome to Olive Board. I hope you all are revising your NABARD syllabus and also the government scheme part. I have taken two more scheme session. So this is the third session of the government schemes. Here also we'll be covering a very recent government schemes. I must tell you ये जितनी भी schemes है ये अभी बहुत ही recent में news में थी. That's why I'll cover this over here. So let's start with the first question that says, with respect to India Smart City Award contest that happened in 2022, consider the following statements. ये 2022 लिखा है but ये हुआ इसी बार है. The contest was organized by Ministry of Housing and Urban Affairs. Is this statement correct? It is the 10th edition of ISSAC, which was launched in the April 2022. The award was organized under Smart City Mission. Agra bagged the first prize in National Smart City Awards. Now you have to tell me from the four options which of the option is correct. So you need to mark the correct option. Is correct पे जरूर ध्यान देना. Is it asking you to mark the correct option or the incorrect option? So that you need to keep in mind. Now about the smart city mission, if you know the smart city mission, then आपने attempt कर ही लिया होगा. अगर नहीं पता, let's have it in a brief detail. It was launched in the year 2015. It's a centrally sponsored scheme. मतलब center और state जो है, both are sharing the funding resources. The financial resources are being shared between your center and state. What is the aim? The aim is to transform 100 cities to provide necessary infrastructure. So basically they are wanting the cities to be smart enough. Smart enough means best mobility, best internet connection, and other things like your parks, your greenery, sustainable resources should be there in the smart cities with certain smart solutions as well. Now, which is the ministry? The ministry is obviously, if it is talking about cities, ministry will be your Ministry of Housing and Urban Affairs. Next thing, so recently the award was being given. There are previously two editions, which was one in 2018-19 and now in 2020 also. तो अभी ये fourth edition हो गया. तो पहले 3 edition हो चुके हैं. The fourth edition of ISAC was launched in the year April 22 or during Smart City Urbanization event that happened. This event happened in actually Surat, Gujarat. तो वहाँ पे event organize किया गया था. Recently अभी award दिए हैं. So there are many categories in which the award are being given. I recommend you to at least have to at least learn 3 winners from these 3 categories. Other than that, और भी categories हैं जिसमें आप सिर्फ एक winner भी याद रखोगे तो चल जाएगा. So let us now see National Smart City Award में there are 3 states. One is your Indore, Surat, Agra. First position is being bagged by your Indore. पहले भी इसी को मिली है. Union Territory, it's your Chandigarh. State, it's your Madhya Pradesh. Indore is in Madhya Pradesh. So here you can remember that. Then Tamil Nadu, Rajasthan and Uttar Pradesh. Next thing. Other categories में Coimbatore has won in built environment. Ahmedabad has won in integrated command and control center category. Jabalpur in economy. Chandigarh in governance and mobility. तो चंडीगढ़ को governance और mobility में भी मिला है और Union Territory award में भी it has received award. Next, Indore for sanitation, water and urban environment. Then Vadodara for social aspects. Then Hubli Dharwad for innovative idea and Surat for COVID innovation category. I hope with this I am clear to you all. Next thing. Now tell me what should be the correct answer with respect to the Indian Smart Cities Mission. The contest was organized by Ministry of Housing and Urban Affairs. It is right. It is the 10th edition. No, it is the 4th edition. We have already seen कि इससे पहले 3 बार हो चुका है. अभी ये 4th edition है. The award are organized by Smart City Mission. Yes, this is correct. Agra has not bagged the first prize. Who has bagged the first prize in Smart City Award? It is your Indore. So 4th option is incorrect and second also incorrect. So the correct option is option number B. Next thing. A flagship health protection scheme, एक health protection scheme है, which is a flagship initiative of Government of India, which was launched in the year 2018. So I have not given you the name of the initiative. You need to identify. It aims to provide universal health coverage. तो यहीं से ये पढ़ते ही आपको समझ में आ जाना चाहिए कौन सी किसके बारे में हम बात कर रहे हैं, कौन सी स्कीम है. It is for poor and vulnerable section. वैसे तो यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज से ही आपको समझ में आ जाएगा कि किस स्कीम की बात चल रही है. बट एनीवेज आगे पढ़ते हैं. ये पुअर और वल्नरेबल सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए है. अदर देन दैट इट एंश्योर्स क्वालिटी हेल्थ केयर सर्विसेज विच आर वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्वियसली. तो हेल्थ केयर सर्विसेज से रिलेटेड ये एक स्कीम थी विच इज यूनिवर्सल हेल्थ केयर कवरेज विच एम्स एट यूनिवर्सल हेल्थ केयर कवरेज. इट वाज लॉन्च इन 2015. पहले तो अगर आप स्कीम आइडेंटिफाई कर लेंगे तभी आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, वरना कैसे ही करेंगे.
So the scheme was launched in 2015. This is what the question says. The statement says it is under Ministry of Health and Family Welfare. Obviously health की scheme है, ये तो सही होगा, but question है क्या year सही है. Next thing, it is a central sector scheme. Then the beneficiary is entitled under the scheme are from National Health Family Scheme or the survey National Health Family Survey. तो मतलब इसके अंदर जो beneficiaries है वो है जिनको आइडेंटिफाई किया गया था अंडर नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे. So option number A and B or option number A and C, which of the following option is correct? I am asking you the correct option. अगर identify कर लिया well and good, नहीं तो let's move ahead. When was the scheme launched? In 2018. तो पीछे लिखा था 2015, which is incorrect. मिनिस्ट्री तो सही है, हेल्थ से रिलेटेड मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर. आयुष्मान भारत इज द स्कीम. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज. अगर कभी वर्ड भी कहीं आता है तो दिस इज द फर्स्ट स्कीम एंड यू मस्ट रिमेंबर दैट. देन सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम दिस वाज. What is the objective? Universal health coverage is the objective. There are two components, but before the two components are here, Health and Wellness Center and Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana. When I say what are the key features under the scheme, 5 lakh per family per year for secondary and tertiary hospitalization care. Secondary and tertiary, not primary. Primary यहाँ नहीं है. You need to look at that. Other than that, क्या यहाँ पे number of family members पे restriction है? नहीं, कोई restriction नहीं है. फैमिली में कितने भी मेंबर हो सकते हैं. देन द फर्स्ट कंपोनेंट अंडर द स्कीम इज योर हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर. इफ आई टॉक अबाउट हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, गवर्नमेंट वांट्स टू ओपन 1,50,000 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, स्पेशली दैट केटर्स टू योर प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स. तो मतलब प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विसेज कहाँ से मिलेंगी? ये हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर से. ये किस पे फोकस करेंगे? दे बेसिकली फोकस ऑन योर maternal child health services as well as your non-communicable diseases. Okay, next thing, the next component is your Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana, which is your PMJAY. When I talk about PMJAY, it provides a health cover of rupees 5 lakh per family per year, irrespective of the number of family members, already discussed before as well. It covers अब प्री हॉस्पिटलाइजेशन 3 days के लिए कवर है और पोस्ट कितना 15 days के लिए. तो दिस अमाउंट विल बी कवर्ड अंडर द इंश्योरेंस. दे कैन अवेल बेनिफिट्स इन बोथ पब्लिक एंड एम्पैनल्ड प्राइवेट हॉस्पिटल. तो जो भी प्राइवेट हॉस्पिटल एम्पैनल्ड होगा, ओनली देयर यू कैन अवेल दिस बेनिफिट, अदरवाइज पब्लिक में तो सब में अवेलेबल है. एंटाइटलमेंट इज डिसाइडेड नॉट ऑन नेशनल हेल्थ फैमिली सर्वे. एज इस सर्वे में कोई भी इंडिविजुअल हाउस होल्ड का जैसे सर्वे नहीं होता है कि आप आइडेंटिफाई करो. इंडिया में सिर्फ एक सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस है का डेटा है जिसके बेसिस पे यू कैन आइडेंटिफाई एलिजिबिलिटी अंडर एनी स्कीम. तो यू नीड टू रिमेंबर दैट एज वेल. नाउ टेल मी द आंसर. फर्स्ट स्टेटमेंट तो ऑब्वियसली इनकरेक्ट है. आई हैव टोल्ड यू यहाँ पर 2018 आना चाहिए. इट इज नॉट अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम, इट इज अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम. नेक्स्ट थिंग, द बेनिफिशियरीज एंटाइटल्ड आर सिलेक्टेड फ्रॉम national family health scheme. No, it is from SECC, socio-economic caste census. So यहाँ पे option must be none is correct and the correct option is D or is E. Sorry for the mistake, but please rectify it. I hope you will be able to do this. Next thing, अब आयुष्मान भारत के अंडर ही और बहुत सारे सब मिशंस है. वन ऑफ द मिशन इज योर आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन. नाम से ही समझ में आ रहा है, इट विल फोकस ऑन योर इंफ्रास्ट्रक्चर पार्ट. कब आया था? इन द ईयर 2021 एंड इट विल बी फॉर द नेक्स्ट 5 years, दैट इज अप टिल द फाइनेंशियल ईयर 25-26. मिनिस्ट्री सेम है क्योंकि हेल्थ से रिलेटेड है तो मिनिस्ट्री तो सेम ही है. इसका पहले नाम क्या था? प्राइम मिनिस्टर आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना. फिर उसको 21 में रिप्लेस करके आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन कर दिया. Total budgetary outlay was 64,180 crore and budget allocated in this very year is 4,200 crore. You need to remember this. Then what is the aim? The aim is to build an IT enabled disease surveillance system by developing a network of surveillance laboratories. तो basically जो भी चीज मेडिकल इंफ्रा से रिलेटेड होगी वो सब चीज जो है वो इसका पार्ट बन जाएंगी. दैट इज व्हाट द स्कीम इज ऑल अबाउट. तो सब चीजें इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड. वो इंफ्रास्ट्रक्चर कैन बी टू कॉम्बैट द पब्लिक हेल्थ इमरजेंसीज और डिजीज आउटब्रेक्स. तो बेसिकली कोविड के बाद वी रिक्वायर्ड सम इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि पैंडेमिक लाइक सिचुएशन को कंट्रोल कर सके. तो बेसिकली ये स्कीम उस चीजों पे फोकस करेगी एट नेशनल, रीजनल, डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक, एट एवरी लेवल इन द कंट्री. आई होप आई एम क्लियर विद दिस. नेक्स्ट थिंग इज
एक और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसा ही मिशन है, विच इज योर डिजिटल मिशन. दिस आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन वॉज लॉन्च्ड इन द ईयर 2021 up till the same 25-26. Total budgetary allocation is rupees 1600 crores and the budget allocated for financial year 23-24 is 341 crore. What is the aim? Aim is to issue digital health IDs ताकि पेनिट्रेशन बेटर हो, ताकि इंश्योरेंस का फायदा सबको मिले, बिकॉज एक आईडी होगा तो करप्शन भी कम होगा. नाउ यू नीड टू टेल मी आयुष्मान भारत आईडी कार्ड्स विच आर इशूड अंडर आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, इसके में जो आईडी कार्ड है इसके अंदर जो नंबर होता है, आईडी नंबर, वो कितने डिजिट का होता है. यू नीड टू टेल मी. ऑल्सो यू हैव टू टेल मी क्या वो पूरा नंबर न्यूमरिक है, मतलब नंबर्स में है, या फिर अल्फा न्यूमरिक है, अल्फाबेट्स और नंबर का कॉम्बिनेशन है. जैसे कि हमारा जो पैन होता है, पैन कार्ड होता है, वो अल्फा न्यूमरिक है, उसमें अल्फाबेट्स और नंबर्स दोनों का कॉम्बिनेशन है. बट जो हमारा आधार कार्ड है वो न्यूमरिक है, क्योंकि उसके अंदर सारे के सारे डिजिट्स हैं. इट इज़ अ 12 डिजिट न्यूमरिक कोड जो हमारा आधार आईडी है. नाउ यू हैव टू टेल मी आभा आईडी जो है वो न्यूमरिक है, अल्फा न्यूमरिक है, और जो भी है उसमें कितने डिजिट्स या फिर कितने नंबर्स हैं, यू नीड टू टेल मी. नेक्स्ट थिंग, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ संबल अंडर मिशन शक्ति. तो इफ यू नो मिशन शक्ति देन ओनली यू विल बी एबल टू अटेम्प्ट, क्योंकि मिशन शक्ति के भी अंडर का सब कॉम्पोनेंट का एक पार्ट है. So if you know, please attempt it. Otherwise, we'll move ahead and see what is there in the scheme. Now, when was this launched? Mission Shakti I'm talking about. Mission Shakti कब launch हुआ था? It was launched in the year 21-22 and it will go for the next 5 years, that is 25-26. तो आज maximum scheme जो है, you will see कि launch year यही है. So इस पे जरूर टैप रखना. Next thing, Ministry of Women and Child Development is the main ministry. What is the aim? Aim is to ensure safety, security and empowerment of women. तो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के लिए देयर इज संबल, एंड फॉर एम्पावरमेंट देयर इज अ स्कीम बाय द नेम सामर्थ्य. तो संबल और सामर्थ्य जो है ये सब स्कीम्स हैं आपकी, सब कंपोनेंट है ऑफ योर मिशन शक्ति. सेफ्टी एंड सिक्योरिटी विल गो फॉर विद द संबल इनिशिएटिव एंड एम्पावरमेंट फॉर सामर्थ्य. What is the total outlay? It is 20,989 crores with central share and state share. अगर सेंट्रल और स्टेट का शेयर लिखा है, दैट सिंपली मीन्स ये किस तरह की स्कीम है. इट इज अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम. आई होप आई एम क्लियर विद दिस. नेक्स्ट थिंग इज, इस साल का बजट का आउटले कितना है, इस ईयर का, दिस वेरी ईयर बजट आउटले इज 3,144 करोड़. वेरी इजी. ये जितनी भी फ्लैगशिप स्कीम है, एटलीस्ट एक दो बार अगर आप इनके बजट को देख लेंगे, लॉन्च ईयर को देखेंगे, डेफिनेटली आपको याद होगा. पीडीएफ को बार बार अगर आप पढ़ेंगे तो भी धीरे धीरे करके वो आपके माइंड में जाता रहेगा. ऑल्सो ट्राई टू अटेम्प्ट टेस्ट्स, गिव टेस्ट्स, स्पेशली गवर्नमेंट स्कीम से रिलेटेड. क्या करो, सिर्फ क्वेश्चन देखो और ट्राई टू अटेम्प्ट द आंसर. अगर याद होगा तो यू विल बी एबल टू गिव दैट. और सिर्फ आंसर ही मत दो, उसको चेक भी करो कि अगर वो आंसर सही है या अगर वो आंसर गलत है तो क्यों गलत है. यू नीड टू कीप दैट थिंग ऑल्सो इन माइंड. नेक्स्ट थिंग, संबल, वन ऑफ द कॉम्पोनेंट ऑफ मिशन शक्ति. इसमें ये 4 चीजें हैं. वन इज योर वन स्टॉप सेंटर. ये वन स्टॉप सेंटर बेसिकली जेंडर बेस्ड वायलेंस के लिए है. यहाँ पे यू विल गेट सपोर्ट फ्रॉम पुलिस एज वेल एज अदर सेंटर्स स्पेसिफिक टू वुमेन. देन वुमेन हेल्पलाइन नंबर वॉज ऑल्सो there. Then बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ is also a sub component of संबल. Now बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के बारे में तो मुझे आई गेस बताने की जरूरत नहीं है, everybody of us knows. Then नारी अदालत which is specifically focus women oriented court, जो women से related जो crime होते हैं, it will deal in that. तो ये चारों components are the part of your संबल. Then comes your सामर्थ्य. सामर्थ्य में there is शक्ति सदन. Previously ये स्वधर गृह था. प्रीवियसली दिस वाज कॉल्ड एज स्वधर गृह. और स्वधर गृह के अलावा शक्ति सदन को उज्ज्वला होम्स से भी जानते थे, बट अभी इन दोनों को कंबाइन करके शक्ति सदन बना दिया है. दिस इज बेसिकली टू प्रोवाइड रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन होम फॉर द वुमेन हु आर लेफ्ट आउट ऑफ देयर होम. नेक्स्ट थिंग इज क्रेश स्कीम इज ऑल्सो बीइंग लॉन्च्ड, ताकि वुमेन की जो एम्पावरमेंट है, वुमेन की एम्पावरमेंट बेसिकली किस लिए होती है, व्हेन दे कैन बी फाइनेंशियली एम्पावर्ड. वो जॉब पे तभी जा पाएंगी जब जो चिल्ड्रन है दे आर बीइंग प्रॉपर्ली टेकन केयर ऑफ. सो फॉर दैट नेशनल क्रेच स्कीम वाज आल्सो अ कंपोनेंट अंडर सामर्थ्य. देन योर प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, दैट इज आल्सो अ पार्ट ऑफ योर सामर्थ्य ओनली. आई होप आई एम क्लियर विद दिस. नाउ टेल मी which of the following is not a part of your संबल under mission शक्ति. Is it your one stop center, your women helplines, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, शक्ति सदन और नारी अदालत? वेरी सिंपल. नाउ यू नीड टू टेल मी इसमें से कौन सा आंसर करेक्ट हो सकता है. देखो, अगर नहीं भी पता, अगर मान लो नहीं भी पता,
तो देख के आपको क्या लग रहा है सामर्थ्य इज रिलेटेड टू योर एम्पावरमेंट, तो इसमें से कौन सा हो सकता है जो एम्पावरमेंट से रिलेटेड है? आई बिलीव ये बहुत ही सिंपल है और ये आप खुद से कर लेंगे, मुझे इसका आंसर बताने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, which of the following statement is or are correct with respect to the above scheme? Above scheme, by that I mean mission Vatsalya. Respect to mission Vatsalya, so I am talking about mission Vatsalya. So it is being implemented by your Ministry of Women and Child Care Development. This is what the option says. Then the next option is it is a central sector scheme and financial support of rupees 4,000 will be provided to children who are leaving child care institution upon turning 18 years. Now you need to tell me which of the above statement is correct. इसमें से कौन सी statement is the correct code? Correct कौन सा है? You need to tell me that. So if you know about the mission, then it's very good. If not, then please listen. Mission Vatsalya नया नहीं है. It was before 2019, there were 3 schemes. You need not remember those schemes. But in 2010, these schemes were merged into Integrated Child Protection Scheme. In 2017, they were renamed as Child Protection Services Scheme. And in 21-22, it was again renamed as Mission Vatsalya. You need to remember this. In yesterday's marathon session, I have talked about a portal. I won't name the portal. You have to tell me in the comment section which portal is related to your Mission Vatsalya. You need to tell me which portal is related to your Mission Vatsalya. अगर वो session देखा होगा तो इसका ये मतलब initial में ही I have talked about this portal. Please find out and tell me in the comment section. Now, when was this launched? It was launched in the year 21-22. Already seen. Mission Vatsalya का ड्यूरेशन क्या है? फॉर द नेक्स्ट 5 years. Ministry's Women and Child Development outlays rupees 10,916 crores with central and state share. अब सेंट्रल स्टेट शेयर है तो सेंट्रल सेक्टर स्कीम नहीं है. कौन सी है? सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम. क्योंकि अगर सेक्टर शेयर होती तो 100% जो फंड है वो कहाँ से आता? सेंटर से आता, क्योंकि यहाँ पे फंड का डिवोल्यूशन है, डिवीजन है. देयरफॉर दिस स्कीम इज सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम. नेक्स्ट थिंग इज व्हाट इज द बजट आउटले ऑफ दिस स्कीम? बजट इज 1472 crores. You need to remember this as well. Next thing, what are the objectives of this scheme? तो ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव इज बेसिकली, देखो चाइल्ड केयर से रिलेटेड स्कीम है तो चाइल्ड से रिलेटेड सारे ऑब्जेक्टिव इसके ऑब्जेक्टिव है. जैसे कि टू इंश्योर अपॉर्चुनिटी इज गिवन टू ऑल द चिल्ड्रन हु आर लेफ्ट, मतलब they don't have parents. If they have some issues with the family, then also they have some opportunity to equally fight in today's world to get good jobs and all that. Then to provide them sensitive, supportive and synchronized ecosystem for better development. Also to implement Juvenile Justice Act 2015. कल भी Juvenile Justice Act के बारे में मैंने उसी पोर्टल में बात करी थी. You need to tell me that portal. Achieve the sustainable development goals. कल बूस्टर सेशन में बात करी थी. अचीव द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स. नेक्स्ट इज योर मिशन वात्सल्य के क्या मोड्स हैं? एक तो इंस्टीट्यूशनल मोड्स हैं जिसके बारे में हमने कल बात करी थी. बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस खोले गए, जैसे चाइल्ड वेलफेयर सेंटर हो गया या फिर जो भी वेलफेयर सेंटर्स है विच आर एक्चुअली लुकिंग आफ्टर और यू कैन से सुपरवाइजिंग द चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस. कल हमने बात करी थी. तो वो सारे तो इंस्टीट्यूशनल कॉम्पोनेंट है. नॉन इंस्टीट्यूशनल कॉम्पोनेंट क्या है इसमें? तो वन इज योर स्पॉन्सरशिप. तो गवर्नमेंट एडेड स्पॉन्सरशिप भी होगी और प्राइवेट एडेड स्पॉन्सरशिप भी का भी प्रोविजन है. मतलब गवर्नमेंट एंड private will work together in this very initiative. Next is your foster care will be given. So financial support will be given so that the foster parent, the guardians can actually look after such children. Then adoption के भी provision है इसमें. For that we have a dedicated body by the name CARA, CARA, Central Adoption Resource Authority. CARA institution is there. Then aftercare is also there. Like when the children attain the age of 18, they definitely leave this, they have to actually leave this child care institutions. तो चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस को जब छोड़ेंगे तो गवर्नमेंट विल प्रोवाइड देम ₹4,000. अब ये 4,000 कब तक मिलेंगे? जब तक वो 21 साल के नहीं हो जाते, 21 ईयर्स के नहीं हो जाते. दिस प्रोविजन कैन बी एक्सटेंडेड अप टिल 23 ईयर्स इफ इट इज फाउंड दैट इट इज नेसेसरी. तो ये ₹4,000 पर मंथ कब तक मिलेंगे? 21 ईयर्स तक. बट दिस प्रोविजन कैन बी एक्सटेंडेड फर्दर अप टिल 23 ईयर्स. Next thing, sorry, repetition. Which of the following statement is all correct with respect to the above scheme? Above, I mean Mission Vatsalya scheme. Now, please tell me Mission Vatsalya scheme से related first statement, is it correct?
Yes, the first statement is correct. It is not a central sector scheme, it is a centrally sponsored scheme. और financial support मिल रही है up till the age of 21 और इसको extend करके 23 years तक भी किया जा सकता है if it is found necessary. और कितनी support मिल रही है? ₹4,000. It is the correct answer. So your answer to the above question is option number 1 and 3. Next, choose the correct statement about the Prime Minister's Employment Generation Program. Now tell me which of the following statement is correct with respect to your Pradhan Mantri Employment Generation Program. It is designed to generate employment opportunities in both rural and urban areas. तो क्या ये दोनों rural और urban areas के हैं? क्योंकि employment से related scheme है तो ये तो part ठीक ही होगा. Next thing, it aims to set up a new employment opportunities. Is this the correct answer? New employment opportunities, or is it raising or upscaling the already existing technologies or opportunities? Or next is the National Implementing Agency is KVIC, which is Khadi Village and Industries Commission, and it is a central sector scheme. This is what the option says. Or is it all of the above statements are correct? I am asking you the correct statement, so you need to identify. This is a flagship scheme of Government of India, therefore it is important. Now let us look at the answer. This scheme was launched way back in the year 2008. Recently, 15th Finance Commission increased its length from 21-22 to up till 25-26. तो इसको बार बार इसकी ड्यूरेशन को इंक्रीज किया जाता है. Now it has been extended up till 25-26. Total outlay is 13,554 crores. इस साल का बजट है 2,700 crores. It is under the Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises. Obviously, employment generation के लिए इंडिया में सबसे ज़्यादा employment, almost 40% employment is being generated by your MSMEs. Therefore, they are at forefront. Next thing, implementing agency कौन है? Nodal at your national level, it is your KVIC. It is a central sector scheme. This is very, very, very important. It is a central sector scheme, means 100% of the fund will be given by your central government. Next thing, what is the eligibility? इस तरह की स्कीम में, स्पेशली जब वो सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, तो एलिजिबिलिटी बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन. एलिजिबिलिटी क्या है? 18 years प्लस होना चाहिए, न्यू प्रोजेक्ट होना चाहिए, ऑलरेडी जो रनिंग प्रोजेक्ट्स है उसके अंदर पैसे नहीं दिए जाएंगे. इफ द लोन अमाउंट फॉर सर्विस सेक्टर इज अबव 5 lakh एंड फॉर मैन्युफैक्चरिंग इट इज अबव 10 lakh, देन जो लोन ले रहा है उसका जो पासिंग he or she must be passed, he or she must have passed standard 8. That is what is there. Then there will be no income ceiling for assistance. तो कोई income की ceiling नहीं है. Next thing is self-help groups have not availed benefits. Here SHGs, your self-help groups are also eligible, but they must not have availed any other benefit under any public scheme. Now, the maximum cost of the project or unit is what is the maximum project which is admissible? Then if it's your manufacturing sector, 50 lakhs. If it's your service sector, 20 lakhs. I hope I am clear. Moving ahead. What is the government subsidy? For rural areas, 25% of the general category and 35% of the special category, which includes your SC/ST minority, can be given the government subsidy. Other than that, if in urban areas, 15% and 25% for special categories. You need to have this thing in your mind. ये data important है. Next, loans कौन provide कर सकता है? Who all can give loans? Your public sector banks, regional rural banks, cooperative banks, private scheduled banks. देखो यहाँ पे almost सारे ही banks होंगे. Reason being, ये इंक्लूजन किसको देना है, एम्प्लॉयमेंट किसको देनी है? फॉर रूरल एंड अर्बन सोसाइटीज. तो अगर रूरल एरियाज में देना है तो आरआरबीज तो पक्का से होंगे ही होंगे, है ना, क्योंकि आरआरबीज को अगर रूरल एरिया में लोन बांटना है तो व्हाट कैन बी बेटर देन आरआरबी. 75% उनका पीएसएल लेंडिंग नॉर्म इज गोज टू द रूरल एरिया, रूरल सेक्टर, और यू कैन से माइनॉरिटी सेक्टर्स ओनली. देन एज पर द आरबीआई गाइडलाइंस के हिसाब से, दिस इज इंपॉर्टेंट, प्रोजेक्ट कॉस्टिंग अप टू ₹10 lakh, 10 lakh तक अगर कोई भी कॉस्ट है तो उस पर कोलेटरल नहीं चाहिए होगा. दैट इज व्हाट आरबीआई सेज. नेक्स्ट इज योर क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस. इट प्रोवाइड्स कोलेटरल गारंटी फॉर प्रोजेक्ट अप टू ₹2 crore. So in this scheme also government provides the guarantee for up to ₹2 crore. This is what this credit guarantee fund for micros and small enterprises says. I hope I am clear with this. Moving ahead. Now you need to tell me which of the following is the correct option.
तो फर्स्ट ऑप्शन इज डेफिनेटली करेक्ट, ये रूरल और अर्बन एरियाज दोनों के लिए एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम है. Yes, it talks about self-employment opportunities. The nodal agency is KVIC. It is a central sector scheme, and all of the above statement are correct. Please, इस स्कीम को थोड़ा एक बार दोबारा से जाके रिवाइज कर लेना अगर किसी को डेटा याद नहीं हुआ है, क्योंकि डेटा से भी क्वेश्चन आ सकता है. बट आई बिलीव अगर इससे क्वेश्चन फेज 1 में आएगा तो शायद से KVIC या फिर इस तरह की कोई एजेंसी के बारे में पूछेगा, और या फिर बजट आउटले के बारे में पूछेगा, उसको एक बार रिवाइज कर लेना. नेक्स्ट थिंग, ऑन हुज बर्थ एनिवर्सरी पीएम श्री स्कीम वाज लॉन्च. अरे बहुत ही बेसिक है, अगर न्यूज़ देखी है तो इसका पीएम श्री स्कीम कब लॉन्च हुई थी, यू कैन इजीली आइडेंटिफाई. हुज बर्थ एनिवर्सरी वाज पीएम श्री स्कीम वाज लॉन्च्ड. इट वाज योर जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, अटल बिहारी वाजपेयी और योर रविंद्रनाथ टैगोर. प्लीज टेल मी द आंसर. कब बनाते हैं हम अपना पीएम श्री, किससे रिलेटेड है? पहले तो अगर यही पता होगा तो आंसर निकल जाएगा. पीएम श्री किससे रिलेटेड है? स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया, राइट? तो स्कूल से अगर रिलेटेड है तो ये कब, तो स्कूल से रिलेटेड कौन होंगे? टीचर्स. और टीचर्स से रिलेटेड कौन है यहाँ पे? टीचर्स डे किसके बर्थ एनिवर्सरी पे मनाया जाता है? योर सर्वपल्ली एस राधाकृष्णन. अगर आपको पीएम श्री के बारे में पता होगा देन यू विल डेफिनेटली मार्क द आंसर करेक्टली. क्वेश्चन देखो यहाँ से भी आ सकता है, जरूरी नहीं है स्कीम से ही क्वेश्चन पूछेगा. कब कब लॉन्च हुई, जरूरी नहीं है ऐसा क्वेश्चन पूछेगा. ये भी पूछ सकता है कि ये स्कीम कब स्टार्ट हुई, और स्कीम क्योंकि एक इंपॉर्टेंट डे पे स्टार्ट हुई, दैट्स व्हाई दैट डे बिकम इंपॉर्टेंट. नाउ to deliver the quality teaching for the cognitive development of students, these schools will be developed. कितने schools develop करने की बात कर रहे हैं? Almost कितने स्कूल डेवलप्स करने की बात कर रहे हैं? ऑलमोस्ट 14,000 स्कूल. देन लॉन्च ईयर इज 2022, 26 to 27. लॉन्च ईयर कब है? 2022 है. मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, ऑब्वियसली स्कूल डेवलप कर रहे हो तो कौन करेगा? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन. आउटले कितना है? 27,360. इट हैज सेंट्रल कॉम्पोनेंट एज वेल एज योर स्टेट का शेयर. तो देयरफॉर ये स्कीम कैसी हो जाएगी? सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम. ठीक है. नेक्स्ट इज ऑब्जेक्टिव क्या है? 14,500 स्कूल्स को डेवलप करना. ऑलमोस्ट 14,000 15,000 स्कूल्स को दे विल बी डेवलपिंग. मोर देन 14,500 स्कूल्स दे विल बी डेवलपिंग अक्रॉस नेशन. नाउ व्हाट आर द की फीचर्स? स्कूल्स किस तरह डेवलप करेंगे? ऑब्वियसली हाई क्वालिटी स्कूल डेवलप करेंगे. ऑब्वियसली द स्कूल विल फॉलो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020. इसके प्रिंसिपल्स को द स्कूल विल फॉलो. दे विल डेवलप्ड ग्रीन स्कूल. ग्रीन स्कूल्स विल बी डेवलप्ड. ग्रीन स्कूल्स बाय ग्रीन स्कूल्स आई मीन जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा वो सस्टेनेबल होना चाहिए. दैट इज व्हाट गवर्नमेंट सेज. नेक्स्ट थिंग, द पेडागोगी. द टीचिंग स्टाइल विल बी मोर एक्सपीरियंशियल, होलिस्टिक, इंटीग्रेटेड, टॉय बेस्ड. मतलब वोकेशनल ट्रेनिंग और जो नॉर्मल पेडागोगी है उससे थोड़ा हटके नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को फोकस करके these schools will run. अदर थिंग इज इनके लर्निंग आउटकम बेस्ड ग्रेडिंग होगी. असेसमेंट विल बी एट ऑल लेवल्स. देन सेक्टर स्किल काउंसिल्स के साथ देयर विल बी लिंकेज ताकि उनको बेटर स्किल इम्पार्ट किए जा सके. ऑल्सो अ स्कूल क्वालिटी असेसमेंट फ्रेमवर्क विल बी एस्टैब्लिश ताकि स्कूल को भी असेस किया जा सके टाइम टू टाइम दैट इफ दे आर वर्किंग वेल और नॉट. इफ आई वांट टू आस्क यू वन थिंग, केवीज भी तो है, फिर वाई पीएम श्री? इफ देयर आर केवीज तो पीएम श्री क्यों? देखो केवीज आर फुली अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल, बट पीएम श्री ये सेंटर के कंट्रोल में हो सकते हैं, स्टेट के कंट्रोल में, या फिर कोई भी लोकल बॉडी के कंट्रोल में भी हो सकते हैं. देयरफॉर पीएम श्री स्कूल्स आपके लोकल बॉडी जैसे कोई म्यूनिसिपैलिटी का स्कूल हो सकता है, कोई स्टेट का स्कूल, स्टेट गवर्नमेंट का या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट का, कोई भी स्कूल हो वो इसके लिए पीएम श्री स्कीम के अंदर दे कैन अप्लाई. नाउ तो ये तो आपको फर्क पता चल गया केवी और पीएम श्री में. देन इट विल बी डन थ्रू चैलेंज मोड. चैलेंज दिया जाएगा स्कूल्स को और ये पोर्टल इस पीएम श्री स्कीम में अप्लाई करने के लिए दिस पोर्टल विल बी ओपन फॉर 4 times a year. एक साल में 4 बार ये पोर्टल खुलेगा. अदर देन दैट वंस एवरी क्वार्टर फॉर फर्स्ट 2 years ऑफ द स्कीम. नेक्स्ट, स्कूल वुड बी रिक्वायर्ड टू सेल्फ अप्लाई. तो खुद से अप्लाई करना है, कोई बॉडी आपके लिए अप्लाई नहीं करेगी. नेक्स्ट थिंग, सिलेक्शन वुड बी डन थ्रू 3 stage प्रोसेस. एक बार देख लेते हैं ये 3 stage का प्रोसेस क्या है. तो दिस 3 stage प्रोसेस में सबसे पहला स्टेज क्या है? States and UTs had to sign MOUs agreeing to implement NEP. ताकि वो NEP अप्लाई करें इसके लिए MOU साइन करेंगे स्टेट्स, और सेंटर उस MOU में क्या करेगा? सेंटर विल प्रोवाइड सपोर्ट ताकि क्वालिटी इंक्रीज हो सके इन स्कूल्स की. नेक्स्ट थिंग, सेकंड स्टेज में क्या होगा? द स्कूल्स एलिजिबल टू बी सिलेक्टेड अंडर द स्कीम आर आइडेंटिफाइड
बाय दिस यूडाइस प्लस डेटा, तो ये डेटा जो है स्कूल्स खुद भरते हैं और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के पास ये पूरा डेटा है। इस डेटा का नाम है यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑफ एजुकेशन प्लस। तो इस डेटा पे जाके मिनिस्ट्री विल पिक ऑल दी स्कूल्स दैट आर एलिजिबल अंडर द स्कीम। Then in the third stage, the selected schools will compete, challenge होगा उनके बीच में for this PM Shri status. So I hope the 3 stages I have made it clear. Next thing, maximum 2 schools, 1 elementary and 1 secondary school would be selected per block. तो एक block से कितने school select होंगे? Only 2. सर्विसेज ऑफ भास्कराचार्य नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एप्लीकेशन एंड जियो इन्फॉर्मेटिक्स, मतलब BISAGN, विल बी टेकन फॉर जियो टैगिंग। ऑब्वियसली आजकल हर चीज़ का जियो टैगिंग कर ही रहे हैं ताकि करप्शन ना हो, लूप होल्स ना रह जाए और फंड इधर उधर ट्रांसफर ना हो। दैट्स वाई जियो टैगिंग के लिए विल यूज इट्स सर्विस। देन एन एक्सपर्ट कमिटी वुड बी कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर फाइनल सिलेक्शन। रिजल्ट्स वेरी इजी, एक्सपर्ट कमिटी ही तो बताएगी ना कि ये जो स्कीम है इज इट वर्थ इट और नॉट। नेक्स्ट, नाउ टेल मी द करेक्ट आंसर। इट वाज सर्वपल्ली एस राधाकृष्णन। तो कभी कभी क्वेश्चन इतना सिंपल भी आ जाएगा, डोंट वरी, ऐसा नहीं है नाबार्ड में सारे ही क्वेश्चन एकदम टफ होंगे और स्कीम से आपको पता ही नहीं चलेगा क्या है। डू गिव, अब आपने जितना पढ़ा है उसी को रिवाइज कीजिए। बिलीव मी, अगर आपने जेन्युइनली थोड़ा भी पढ़ा है पिछले 15 आपके फॉर्म आने के बाद, तो बिलीव मी आप अच्छा करके आएंगे पेपर में। आप प्लीज अब इसके बाद सिर्फ और सिर्फ रिवाइज कीजिए और मैक्सिमम टेस्ट देने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट थिंग, with respect to PRIP scheme, which of the following statement is correct? तो PRIP scheme से related which of the following statement is correct? ये अभी recent में scheme news में थी, that's why I have picked up this scheme. The scheme aims to bolster self-reliance and innovation in India's pharmaceutical and medical tech sectors. Next is the nodal ministry is Ministry of Chemical and Fertilizers. Just a second, guys. Sorry guys, for the disruption. The nodal ministry is Ministry of Chemical and Fertilizers. Next thing is the scheme was launched in 2023 and the total financial outlay for the scheme is rupees 5,000. So which of the following statement is correct? You need to tell me that regarding your PRIP scheme. अगर recent का PIB session देखा होगा तो definitely you will be able to answer. कोई बात नहीं, लेट्स मूव अहेड एंड सी अबाउट द स्कीम। सो दिस PRIP स्कीम वाज वेरी रिसेंटली इन न्यूज। PRIP की फुल फॉर्म क्या है? प्रमोशन ऑफ रिसर्च एंड इनोवेशन इन योर फार्मा मेडटेक सेक्टर। एम क्या है? बेसिकली दे वांट कि एकेडमिक्स जो है वो इंडस्ट्री के साथ लिंकेजेस हो, तो जो भी नई रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो रही है उसके बेसिस पे इंडस्ट्री कैन नाउ स्टेप अप और दे कैन अपस्केल। Next thing is, what is the time period? The time period is 5 years. It will go from 2023-24 to 27-28. What is the total outlay? The total outlay is rupees 5,000 crore. And the ministry is Ministry of Chemicals and Fertilizers. तो aim तो we have already discussed. You need to remember this क्योंकि देखो मेडिकल से रिलेटेड है और मिनिस्ट्री है केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स। प्लीज इस पे थोड़ा सा ध्यान देना। नेक्स्ट थिंग, scheme has 2 components. So component A which says that we need to strengthen the 7 central of excellence. तो ये 7 center of excellence बनाएंगे. For that they have kept an outlay of 700 crores. इन 7 central of excellence कहाँ बनेंगे? National Institute of Pharmaceutical Education and your research, NIPER. ओके, ये NIPER आपके 7 ये NIPER आपके 7 स्टेट्स में है, 7 प्लेसेस पे है। जैसे मोहाली में जो होगा उसके पास एक स्पेशलाइज्ड फंक्शन होगा फॉर एंटीवायरल एंटीबैक्टीरियल ड्रग डिस्कवरी एंड डेवलपमेंट। वेरी यू नीड टू एक्चुअली हैव अ लुक एट दैट। अगर याद हो तो वेल एंड गुड, वरना एटलीस्ट यू शुड नो व्हाट यू हैव रेड। जैसे हैदराबाद है तो बल्क ड्रग से रिलेटेड है, अहमदाबाद है तो मेडिकल डिवाइसेस से रिलेटेड है, कोलकाता होगा तो फ्लो केमिस्ट्री और कॉन्टिन्यूस मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड होगा, देन रायबरेली, देन नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम, गुवाहाटी फॉर फाइटो एंड फार्मास्यूटिकल्स एंड हाजीपुर फॉर बायोलॉजिकल थेरेपेटिक्स। सो दिस इज व्हाट the scheme is all about. Next thing, scheme has 2 components. तो एक component 8 तो हमने देख लिया जिसके अंदर हम सेंटर ऑफ एक्सेलेंस एस्टैब्लिश कर रहे थे। जो दूसरा component है उसके अंदर we have identified 6 priority areas और इन 6 priority areas पे we'll be having research and development. That is what the PRIP scheme says. So now choose the correct option. So the first option was correct, that
सेल्फ रिलायंस वी नीड टू बोल्स्टर, बिकॉज इंडिया का जो फार्मा सेक्टर है इट इज़ वेरी मच थ्राइविंग, और अगर हम इसी पेस पे गए तो मे बी वो उतना उसको इफेक्टिव नहीं होगा, बिकॉज इंडिया सिर्फ जेनरिक ड्रग्स में ही लीड करता है, बाकी सब चीज़ों में इंडिया इज़ वेल वे बिहाइंड। तो हमें और अगर अपने आप को बूस्ट करना है, देयरफॉर सच स्कीम्स आर रिक्वायर्ड। And which is the ministry? Ministry is Ministry of Chemical and Fertilizer. The scheme was launched in 2023 and the total financial outlay is rupees 5,000 and all of the above is the correct answer. तो देखो ये स्कीम अभी रिसेंट की है, दैट्स व्हाई दिस स्कीम इज इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। नाउ लेट्स मूव अहेड। नेट ग्रिड की फुल फॉर्म क्या है? वेरी इजी, अभी कल की ही क्लास में मैंने ये क्वेश्चन दिया था। नेट ग्रिड की फुल फॉर्म नेशनल, पूरा देखना यार, सिर्फ नेशनल इंटेलिजेंस देख के मार्क मत कर देना, इट इज नॉट ग्रुप, इट इज ग्रिड, नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड। इसलिए आई एम वार्निंग यू गाइज, फर्स्ट ऑप्शन कभी कभी एग्जाम में ट्रैप की तरह सेट करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन देखते ही, और अगर किसी ने मार्क करा है और लास्ट के 4 ऑप्शन नहीं देखे हैं, देयर कैन बी अ ट्रैप फॉर यू एज वेल। सो देयरफॉर रीड ऑल द ऑप्शंस, टेक योर टाइम, बिकॉज गलत आंसर मार्क करने पे देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग एज वेल। तो ये नेट ग्रिड क्या काम करती है, बेसिकली कब फॉर्म हुई थी? तो नेट ग्रिड एक डेटाबेस है दैट विल एक्चुअली स्टोर ऑल द डेटाज फ्रॉम वेरियस, दैट विल स्टोर ऑल द डेटा information about the terrorists, the economic crimes and all that, ताकि जो 21 ऑर्गेनाइजेशंस है, ऑलमोस्ट 21 ऑर्गेनाइजेशंस हैं इंडिया में दैट वर्क फॉर योर इंटरनल सिक्योरिटी। तो अगर उस इंटरनल सिक्योरिटी में काम करने वाली ऑर्गेनाइजेशंस को कभी भी कोई डेटा चाहिए और रिलेटेड टू क्राइम और दैट थिंग, तो उनको रिस्पेक्टिव स्टेट्स या फिर किसी और ऑर्गेनाइजेशन के पास ना जाना पड़े, वो टाइम बचाने के लिए दिस नेट ग्रिड हैज बीन पुट इन प्लेस। This is under Ministry of Home Affairs. It was formed after very infamous attack of your 26/11 of Mumbai. I hope this is clear. And 11 central agencies and police departments are actually available, or its services are available to all these departments. Next thing, NatGrid की full form is important. Other than that, वो कब आया था, कब launch हुआ था, और कौन सी ministry के अंदर है, that's it for your examination. Let us move ahead. With respect to Vivad Se Vishwas scheme, which of the following statement given is correct? It was launched in the year 2020. Is it correct? Was the Vivad Se Vishwas scheme launched in the year 2020? Next is MSME ki is the nodal ministry, and your ministries have been asked to refund performance security deducted with due interest. मतलब रिफंड देना है और साथ में उसको इंटरेस्ट भी वापस करना है जो भी डिफॉल्ट किए हैं कोविड-19 में। तो which of the following statement is correct? I am asking you the correct statement. You need to answer. Let's move ahead and see. Government of India came up with this Vivad Se Vishwas scheme. So government told that they have actually tried and settled more than 10,000 claims under the scheme. So this scheme was launched in this very year, 2020 में नहीं, इसी साल launch हुई है, therefore important. जेम पोर्टल के अंदर इसका सारे क्लेम्स रेज किए जाएंगे और सेटल भी उसी पोर्टल पे करेंगे। ऑल डेटा विल बी अवेलेबल ऑन योर जेम पोर्टल। फॉर जेम पोर्टल आई हैव टेकन, आई गेस गवर्नमेंट स्कीम मैराथन सेशन 1 में आई हैव टेकन दिस स्कीम, जेम पोर्टल स्कीम, जेम स्कीम आई हैव टेकन ओवर देयर, यू कैन गो एंड लुक एट दैट। देन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इज द नोडल एजेंसी, नॉट MSME. Other than that, what is the last date of claim submission? It is 30th June 2023. तो date has gone. तो अभी तक जिसने भी claim submit किया होगा उनको ओनली उन्हीं का प्रोसेसिंग दे आर डूइंग। ऑब्जेक्टिव क्या है? तो इट इज टू प्रोवाइड रिलीफ अंडर MSME. तो MSME ड्यूरिंग कोविड इफ दे वर नॉट एबल टू एक्चुअली फर्निश देयर कॉन्ट्रैक्ट्स, तो उनके जो पैसे हैं वो रोक लिए गए थे। तो नाउ द गवर्नमेंट इज आस्किंग द मिनिस्ट्रीज टू रिलीव देम फ्रॉम दीज हर्डल्स। तो एलिजिबिलिटी क्या है? एक तो पहले वो MSME रजिस्टर्ड होनी चाहिए। अदर देन दैट वो गुड्स और सर्विसेज किसी भी कैटेगरी में आ सकती है, दिस इज नॉट अ बार, गुड्स एंड सर्विसेज इज नॉट अ बार। उनका कॉन्ट्रैक्ट इस टाइम से इस टाइम पीरियड तक होना चाहिए। टाइम पीरियड दे हैव डिसाइडेड दैट इट मस्ट बी बिटवीन 19th of February 2020 to 31st of March 2022. Then ministries have been asked to refund the performance security, bid security, liquidated damages that were deducted during your COVID-19 pandemic। पर सिर्फ डैमेजेस या फिर बिड सिक्योरिटी इसका अमाउंट रिफंड करना है, इसके ऊपर जो इंटरेस्ट बना है वो नहीं देना है, इंटरेस्ट इज नॉट एप्लीकेबल। कितना वापस करना है? 95% ऑफ ऑल, चाहे वो परफॉर्मेंस सिक्योरिटी का हो, बिड सिक्योरिटी का हो या फिर लिक्विडेटेड सिक्योरिटी का हो। अदर देन दैट 95% ऑफ द रिस्क परचेज अमाउंट शैल ऑल्सो बी रिफंडेड। नो इंटरेस्ट शैल बी पेड ऑन सच रिफंडेड अमाउंट, दैट इज व्हाट द मिनिस्ट्री सेज। इंटरेस्ट नहीं है। In case the firm has been debarred only due to default in execution of such contracts, such debarment shall also be revoked. This is what the ministry says. So which of the following statement is correct?
I asked you the correct statement. None of the above statement is correct because it is not 2022, it is 23. Ministry of Finance is the nodal ministry and interest will not be there. That is what we have seen. So option number E is the correct answer. Next thing. RODTEP scheme. This scheme was there in news. RODTEP scheme stands for Remission of Duties and Taxes on Exported Products. तो ये export products को boost देने के लिए this scheme was put in place. Earlier there was a scheme by the name MEIS, Merchandise Export Scheme. तो ये जो export implementation scheme है, Merchandise Export Implementation Scheme, this scheme was actually providing direct इसके अंदर जो provisions थे, they were against your WTO provisions. Therefore, this was scrapped and this policy was taken over. This policy has notified that the support which was notified till 30th September 2023 is now being extended to 30th June 2024. This is what the scheme says. Next thing. Launch year is 2021. Ministry of Commerce, as far as the scheme is concerned, tax refund कितने होंगे 0.5% to 4.3%. और ये जो tax refund होंगे ये किसको मिलेंगे? ये एक e-script की फॉर्म में आपको मिल जाएंगे. Then you can get the refund back. This rebate will be claimed as a percentage of your freight on board value of export. तो कितने freight on board value है उसके basis पे you will be getting your refund. तो what is freight on board? Actually ये term International Chamber of Commerce की है. You can say freight on board or free on board, anything you can change irreplaceably. तो free on board is basically कि कितना good आपका उस board पे है और उसकी liability किसके पास है. Is it with the owner or is it with the destination? That is what this freight on board talks about. Anyways, moving ahead, objective तो obviously encourage करना, export को नाम से ही समझ में आ गया है. इनकी refunds easy रहें इसीलिए एक online portal बनाया है. To provide automatic refund route and also to help exporters to meet their international export standard. For that, this portal has been made. Now, who all are eligible? So eligible, this scheme is applicable to all the sectors involved in the export of goods irrespective of their turnover. Next thing, goods exported through e-commerce platform can benefit under the scheme, and special economic zones and export-oriented units are also eligible under the scheme. I hope I am clear with this. Who all are not eligible? तो अगर उनको किसी और segment में they are already getting a benefit under any other export segment, तो उनको यहाँ पे benefit नहीं देंगे. री-एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट विल ऑल्सो नॉट गेटिंग बेनिफिट. मतलब चाइना से अगर कोई प्रोडक्ट इंडिया में आ रहा है और इंडिया से फिर बाहर किसी और कंट्री में भी यूएस में जा रहा है तो उसको ये बेनिफिट नहीं मिलेगा बिकॉज ये री-एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट होगा. दैट्स वाई सिर्फ इंडियन मैन्युफैक्चर्ड गुड्स को ही यहाँ पे बेनिफिट मिल सकता है. नेक्स्ट थिंग, व्हाट आर द सेक्टर कवर्स? ऑलरेडी बहुत सारे सेक्टर इसमें कवर्ड है. एक दो सेक्टर जैसे एक स्टील हो गया वो ऑलरेडी थ्राइव कर रहा है, उसको बेनिफिट की जरूरत नहीं है इसलिए वो यहाँ पे नहीं है. अदरवाइज यू विल सी मैक्सिमम सेक्टर्स आर देयर. नाउ व्हाट डज दिस आर इन द RODTEP स्टैंड फॉर? तो इस तरह के भी क्वेश्चन आते हैं. वेरी सिंपल क्वेश्चन. इसका आंसर है रिमिशन ऑफ ड्यूटीज, राइट? तो इस तरह के क्वेश्चन जो एक्रोनिम होता है उनका फुल फॉर्म भी एक बार देखते चले. नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज correct with respect to your green hydrogen mission? Or sorry, incorrect. I'm asking about the incorrect statement. Keep in mind, was the mission launched on 2021? Is it under Ministry of New and Renewable Energy? Fossil fuel को reduce करना है up till ₹1 lakh crore, क्योंकि obviously हम fossil fuel 80% तक import ही करते हैं, तो उसको reduce करना है कितना 1 lakh crore. This is what the statement says. Or the objective is to develop green hydrogen production capacity of at least 50 million metric per annum. इसमें से कौन सी स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट या फिर सारी ही करेक्ट है? तो अगर सारी करेक्ट है देन यू कैन मार्क ई एज द ऑप्शन. Okay, anyways, let's move ahead and see about National Green Hydrogen Mission. So this mission was launched in 2021. पहली statement is correct. So we need to find the incorrect statement. Ministry is Ministry of New and Renewable Energy. दूसरी स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट. एम क्या है? ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करना. ग्रीन हाइड्रोजन जब हम प्रोड्यूस करते हैं वी प्रोड्यूस इट वाया वाटर. वाटर इज द रिएक्टेंट. तो वाटर मेन सोर्स है जहां से ग्रीन हाइड्रोजन निकलेगा. ये जब टूटता है वाटर ब्रेक्स डाउन इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. इसको एज अ फ्यूल यूज करते हैं और ये बाय प्रोडक्ट एनवायरनमेंट में छोड़ देते हैं और ऑक्सीजन को एनवायरनमेंट में छोड़ के कोई भी नुकसान नहीं होगा. सो देयरफॉर दिस इज अ वेरी गुड मिशन. इसके अंदर दो सब स्कीम्स है. फर्स्ट इज योर स्ट्रेटेजिक इंटरवेंशन फॉर ग्रीन हाइड्रोजन ट्रांजिशन प्रोग्राम साइट एंड द अदर इज योर ग्रीन हाइड्रोजन हब.
साइट के अंदर वी आर फोकसिंग ऑन domestic manufacturing of electrolyzers, and in green hydrogen hub we are actually selecting those places where we can put these we can actually install these units, these hydrogen producing units where we can install. So Union Cabinet in this very year approved that up till 2030 this scheme will be launched. तो ये स्कीम कब तक ऑपरेशनल है? बाय 2030 दिस स्कीम विल बी ऑपरेशनल. कम से कम 5 million metric ton greenhouse gas will be produced. 60 to 100 gigawatt electrolyzer capacity will be there. 125 gigawatt renewable energy capacity for greenhouse gas generation will be there. तो आपको ये डेटा याद रखना है बिकॉज ये अभी रिसेंट की स्कीम है, वेरी इंपॉर्टेंट. अदर देन दैट कितना आउटले है? प्लीज रिमेंबर दिस, 19,744 करोड़. प्लीज 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 डू हैव अ लुक एट दिस. कितनी इंपोर्ट सेविंग करना है? 1 लाख करोड़ की. 50 million metric ton कार्बन डाइऑक्साइड एनुअल एमिशन को हमें अवॉइड करना है. 6 lakh jobs create करनी है and 8 lakh crore of investment we have to generate. That's why this scheme is important. ये डेटा याद करके रखना. Green hydrogen mission is very much there in news from last 2-3 months. So important. Financial outlay, I have already taken a note of this. इसमें जो एक सब स्कीम है विच आई टॉक्ड अबाउट साइट, जो कि डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग इलेक्ट्रोलाइजर्स पे फोकस करती है, उसमें डेडिकेटेडली गवर्नमेंट इज गिविंग 17,490 करोड़. देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? सो दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट बिकॉज हमें हाइड्रोजन प्रोडक्शन कैपेसिटी को कितना करना है? नॉट 50, इट इज 5 million metric ton. Which of the following statement with respect to Swachh Bharat Mission Gramin is incorrect? So this is a question for you all. You need to answer it in the comment section below. We'll discuss about this scheme in the upcoming government scheme marathon session. So please take a note of this question and try to answer it. और अगर इसमें से कोई भी incorrect है तो बताना ज़रूर कि वो क्यों incorrect है. That's all for today. That's all from my side. Thank you and have a nice day. I hope you will keep on revising these sessions.